Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ibad Biology. Today we will discuss the light-dependent reaction of photosynthesis. As you know that photosynthesis completes in two sets of reactions. The first one is known as light-dependent reaction, while the second one is known as light-independent reaction or Calvin cycle. So in this video we will talk about the first major phase of photosynthesis, that is known as light-dependent reaction. So let's start. Light-dependent reaction is driven by light energy, and that is why it is known as light reaction. And this reaction produces molecules which are required for the next stage of photosynthesis, that is known as dark reaction. Molecules required for dark reactions are ATP and NADPH. Okay. It is also known as thylakoid reactions because the reaction takes place in the thylakoid membranes of chloroplast. The light-dependent reaction of photosynthesis is carried out by four major protein complexes in the thylakoid membrane. Thylakoid membrane के अंदर चार प्रोटीन complexes हैं जहाँ पे ये process complete होता है, और वो चार प्रोटीन complexes ये हैं: Photosystem II, Cytochrome complex, Photosystem I, and ATP synthase. You can see in this diagram these are the four major complexes involved in the light reaction. This complex is Photosystem II. This is the Cytochrome BF6 complex. This is Photosystem I and ATP synthase. अब इन complexes का काम क्या है, ये complexes कैसे काम करते हैं? Photosystem II क्या करता है? Photosystem II actually photolysis करता है, water की breaking करता है, उससे oxygen evolve होता है, और जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं thylakoid lumens में वो later on ATP synthesis में यूज होते हैं. Cytochrome BF6 complex receives the electrons from Photosystem II and delivers them to Photosystem I. It also transport additional protons from stroma into the lumen. Photosystem I reduces NADP to NADPH in stroma by action of ferredoxin and ferredoxin NADP reductase. Photosystem I के साथ प्रोटीन्स अटैच होते हैं ferredoxin and ferredoxin NADP reductase, और ये प्रोटीन्स NADP को NADPH में reduce करते हैं. Okay, and finally the fourth complex, that is ATP synthase. It produces ATPs as the protons diffuses back from lumen into स्ट्रोमा. जो प्रोटॉन्स thylakoid ल्यूमन के अंदर बनते हैं या जो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के जरिए अंदर आते हैं ल्यूमन में, वो वापस एटीपी सिंथेज के थ्रू पंप होते हैं स्ट्रोमा में, और उस पॉइंट पे एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. So there are two possible pathways for electrons in the light reaction. The one is known as non-cyclic electron transport and the second is cyclic electron transport. So first we will talk about non-cyclic electron transport. Non-cyclic electron transport में हम start करते हैं Photosystem II से. Light absorption by Photosystem II. जब Photosystem II light absorb करता है तो light energy transfer होती है reaction center में, और उस energy से electrons excite होते हैं, electrons की energy बढ़ती है. The high energy electrons are passed to primary electron acceptors. Photosystem II से वो high energy electrons Phi10 receive करता है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटोसिस्टम 2 का. और जो फोटोसिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है, वो फिल होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से. नाउ व्हाट इज फोटोलिसिस? फोटोलिसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ वाटर और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बाय फोटोसिस्टम 2. जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में दो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. एक्चुअली वाटर लाइट रिएक्शन के अंदर यूज होता है. वाटर की ब्रेकिंग होती है फोटोसिस्टम 2 पे. फोटोसिस्टम 2 के साथ एक कम्प्लेक्स, एक प्रोटीन अटैच है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, और वो वाटर की ब्रेकिंग करता है, या हम कह सकते हैं कि वाटर को ऑक्सीडाइज करता है. तो इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, प्रोटॉन्स बनते हैं, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट होती है, वो डिफिशिएंसी ये इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. इस इक्वेशन में ये एक्चुअली दीज आर टू वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, the equation indicates that 4 electrons are removed from 2 water molecules, generating an oxygen molecule and 4 hydrogen ions. Okay, next step is ATP synthesis. The high energy electrons from photosystem 2 travel down an electron transport chain, losing some energy. Some of the energy is used in pumping hydrogen ions from stroma into the thylakoid lumen. Electrons की कुछ energy प्रोटॉन के स्ट्रोमा से ल्यूमन में पंपिंग के लिए यूज होती है. इससे क्या होता है? ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है. देन फाइनली द हाइड्रोजन आयंस मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द स्ट्रोमा थ्रू एटीपी सिंथेज ड्राइविंग एटीपी प्रोडक्शन. ल्यूमन में जब
हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एटीपी सिंथेज उन हाइड्रोजन्स को वापस स्ट्रोमा में पंप करता है और प्रोटॉन पंपिंग के साथ साथ एटीपी सिंथेसिस होती है। एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है और एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लाइट एब्जॉर्प्शन इन फोटोसिस्टम 1। जिस तरह फोटोसिस्टम 2 पे लाइट पड़ती है, एट द सेम टाइम फोटोसिस्टम 1 पे जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर करता है। फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए आगे कॉम्प्लेक्सेस से पास होते हैं। अब जब फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है, वो डिफिशियंसी फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो फिल करता है। एंड फाइनल स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ NADPH। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 से एक्साइट हुए हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस से पास होते हैं और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाता है। तो द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट रिएक्शन का जो नेट रिजल्ट है वो क्या है, उससे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ATP सिंथेसाइज होता है और NADPH सिंथेसाइज होता है। एंड दीज ATP एंड NADPH are used in the light independent reaction of photosynthesis that is known as Calvin cycle. अब इस प्रोसेस को हम diagrammatically एक्सप्लेन करते हैं। This is the thylakoid membrane. This is the outside of thylakoid membrane which is stroma and this is the inside of thylakoid vesicle that is thylakoid lumen. अब ये जो 4 प्रोटीन कम्प्लेक्सेस है thylakoid मेम्ब्रेन के अंदर, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 1 एंड ATP सिंथेस। अब यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 पे जब लाइट पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करता है, दैट इज फ्यूफाइटिन, और फ्यूफाइटिन इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोन को देता है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट होती है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल से फिल होती है। दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, दिस वन इज नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स के जरिए ऑक्सीजन की ब्रेकिंग होती है ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में आके गैप को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन में ट्रांसफर होते हैं तो प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होता है, फोटोसिस्टम 2 ऑक्सीडाइज होता है। प्लास्टोक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम BF6 कम्प्लेक्स में पास करता है और वो रिड्यूस होता है। ये सारे कम्प्लेक्सेस अल्टरनेटिवली रिड्यूस होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन अगले कम्प्लेक्स को पास करते हैं तो ऑक्सीडाइज होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी प्रोटॉन के पंपिंग में यूज होती है। ये जो स्ट्रोमा में कुछ प्रोटॉन है ये thylakoid lumen में पंप होते हैं साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के जरिए। ये आप लोग देख सकते हैं, प्रोटॉन्स यहाँ से पंप होते हैं और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के जरिए ल्यूमन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है thylakoid lumen के अंदर। अब साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन्स कौन रिसीव करता है, प्लास्टोसाइनिन, जो कि एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके फोटोसिस्टम 2 को ट्रांसफर करता है। अब एट द सेम टाइम जैसे कि फोटोसिस्टम 2 पे लाइट पड़ती है, फोटोसिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ती है, और यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर से इजेक्ट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए फेरेडॉक्सिन और फाइनली FNR में आते हैं। अब फोटोसिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन गैप क्रिएट हुआ है वो कहाँ से फिल होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ है जो फोटोसिस्टम 2 से आ रहे हैं थ्रू प्लास्टोसाइनिन। वो इलेक्ट्रॉन्स आके इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को फिल करते हैं। फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए पैराडॉक्सिन को ट्रांसफर होते हैं, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के जरिए NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली रिसीव्ड बाय NADP टू प्रोड्यूस NADPH। ओके, अब जो प्रोटॉन्स यहाँ पे बनते हैं उनका क्या होता है, कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पे फोटोलिसिस से बनते हैं और कुछ स्ट्रोमा से पंप होते हैं थ्रू साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। प्रोटॉन्स यहाँ से ATP सिंथेस के जरिए वापस स्ट्रोमा में पंप होते हैं, और इन प्रोटॉन्स की एनर्जी के जरिए ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के ATP बनाया जाता है। ओके, सो The final products are NADPH and ATP. Okay? इस प्रोसेस को non-cyclic इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिसाइकल नहीं होते।
जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 से एक्साइट हुए हैं दे एंडेड ऑफ इन फोटोसिस्टम 1, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को फिल करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 से एक्साइट हुए हैं दे आर यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं वो तो हमने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन लीनियर पाथ में ट्रेवल करते हैं, जो वाटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 से होके NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? पहले हम फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। फॉस्फोराइलेशन इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस व्हेन एनर्जी फ्रॉम लाइट इज यूज्ड इन द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। सो द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ADP के साथ फॉस्फेट ऐड होता है, दिस इज फॉस्फोराइलेशन, और इसके लिए एनर्जी कहां से आती है? लाइट एनर्जी यूज होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। So this is the photophosphorylation process. Okay. The second path of electrons is known as cyclic electron transport. Cyclic electron transport involves only photosystem 1, that is E700, and in this process electrons follow a cyclic path. यानी इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट होते हैं वापस रिसाइकल होके उसी पोजीशन पे आते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये प्रोसेस कहां पे होता है और किन कंडीशंस में होता है? बेसिकली ये प्रोसेस एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में होता है जिनमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम होता है, ओके। और रेयर कंडीशंस में हायर प्लांट्स में भी होता है जब फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक होता है। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं बनता फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इनमें एक ही फोटोसिस्टम होता है, इसलिए इनमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। फोटोसिस्टम 1 इज एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इट लूजेस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। फोटोसिस्टम 1 जब लाइट एब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिएक्शन सेंटर से इजेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 आर पास थ्रू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 and ferredoxin, and finally recycled to photosystem 1 through plastoquinone, cytochrome complex and plastocyanin। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं साइक्लिक पाथ को। ये वाला जो पार्ट है ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, ओके। फोटोसिस्टम 1 जब लाइट एब्सॉर्ब करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस से पास होके फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर होते हैं। इस फेरेडॉक्सिन से होके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास होके वापस इसी रिएक्शन सेंटर में आते हैं। सो हियर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर through this path and finally they are recycled to the reaction center. So this process is known as cyclic electron transport। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे FNR पे नहीं आते तो इस प्रोसेस के दौरान NADPH नहीं बनता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ATP सिंथेसिस में यूज होती है। So cyclic electron flow generates only ATP but no NADPH। इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, जब फोटोसिस्टम 1 पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होकर फेरेडॉक्सिन में आता है, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फिर प्लास्टोसाइनिन में आता है और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन्स को वापस फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफर करता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास होते हैं यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, हाइड्रोजन आयंस पंप होते हैं स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर, और ये हाइड्रोजन आयंस जब ATP सिंथेस के जरिए वापस स्ट्रोमा में जाते हैं तो ATP सिंथेसिस होता है। यही वजह है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ ATP बनते हैं और NADPH नहीं बनते। So this was all about light dependent reaction of photosynthesis. In the next video we will discuss light independent reaction of photosynthesis. Thank you for watching and subscribe the channel for upcoming videos.